हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.6 फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स करेंगे बेटा। इससे पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 15 डिस्कस कर लिए थे। आज हमारी वीडियो में एनसीईआरटी बुक को एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स वो डिस्कस करेंगे। तो 16 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन में एक स्पेशल टाइप है एंड लेट वी डिस्कस दैट स्पेशल टाइप फर्स्ट एंड देन वी विल सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट special type. So type is what? Type is like this. An integration is given like this: e raised to power x into bracket में f of x, any function f x with its derivative f dash x into dx. This is the type in which integrand is like that: e raised to power x, simple power x, into any function f x plus derivative of that function. And its integration, how you can integrate this type of functions. So for this type of function we always multiply this e raised to power x with fx as well as f dash x, just like this: e raised to power x fx into dx and then e raised to power x f dash x into dx. And now taking this part which is integrand which contain f dash x as it is, जिस पार्ट में f dash x आएगा उस पार्ट को हमने इंटीग्रेट नहीं करना, that will remain as it is. Integrate our first part by taking f(x) as first function and e raised to power x as second function, because according to Eilert rule जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किए हैं उसमें तुम्हारा एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में फंक्शन आता है, तो दैट्स व्हाई e रेज़ टू पावर x दिस इज आवर सेकंड फंक्शन एंड f(x) व्हाटएवर दिस f(x) इट मे बी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल, व्हाटएवर दिस f(x) दिस इज ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन, बिकॉज e raised to power x exponential is the last letter of this word Eilert, so that's why we always take e raised to power x as second function and f(x) as first function. So we integrate only the part which contain f(x) and which contain f dash x into x, that will remain as it is. उसे हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे जब भी हमारी इस तरह की कोई टाइप आएगी क्वेश्चन में। तो नाउ लेट्स अप्लाई दिस प्रोडक्ट रूल इन फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमने प्रोडक्ट रूल लगाया था कल इससे पहले वीडियो में, तो फर्स्ट पार्ट एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट पार्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट्स आर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, that is d by dx of fx into integration of second, that is e raised to power x into dx, bracket 1 and then dx. And now keep this function as it is. इस फंक्शन को हम as it is लिखेंगे यहाँ पे, that is e raised to power x into f dash x into dx. ये जो स्पेशल टाइप है हमारी, ये सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में लगती है जहाँ पे e raised to power x के साथ fx plus f dash x दिया होगा। सीबीएसई लेवल पे हमें ये fx plus f dash x को हमें पूरा इंटीग्रेट करके दिखाना होगा, तो फॉर दैट वी विल सेपरेट दीज टू फंक्शंस एज e raised to power x into fx dx plus e raised to power x into f dash x into dx। और जिस पार्ट में f dash x है उसे हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, वी विल टेक इट एज इट इज, इसको हम एज इट इज लेके चलते रहेंगे एंड देन सिंप्लीफाई दिस। तो fx वी नो इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power x is ex as it is. Now integration derivative of fx, what is derivative of fx? That will be f dash x, integration of e raised to power x, that is ex and then into dx, plus this part जो as it is था हमारा, that will be e raised to power x into f dash x into dx, and we will observe that these two parts are negative of each other. This is ex f dash x into dx, this is also ex f dash x into dx but with opposite sign. So that's why in each and every question they will be cancel out. In each and every question they will be cancel out. अगर हमारे पास टाइप यही आती है fx plus f dash x, तो हमेशा ये दोनों पार्ट कैंसिल होंगे और सीबीएसई में हमें ये पार्ट करके दिखाना होता है, जबकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम करते हैं तब हम इसका आंसर सीधा भी निकाल सकते हैं। सीधा आंसर क्या आएगा देखिए, नाउ व्हाट इज द आंसर? e raised to power x into fx plus c, that's your answer. तो इस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज e raised to power x into fx plus c. इट्स आंसर इज ऑलवेज लाइक दिस, हमेशा इसका आंसर यही रहेगा e raised to power x into f of x plus c। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हो तो वहाँ पे तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि विच ऑप्शन विल बी करेक्ट।
आपने ध्यान रखना होगा कि आपकी जो टाइप है, जो क्वेश्चन है, दैट मस्ट बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, देन आंसर मस्ट बी e रेज़ टू पावर x इंटू fx प्लस c। बट अगर CBSE में यही क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको डायरेक्ट नहीं करके दिखाएंगे, बल्कि आप इसको पूरा सोल्व करके दिखाएंगे। यहाँ पे कैंसिल होता है, उसके बाद हमारा आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में स्पेशली बात क्या होती है कि यहाँ पे fx और f', कई बार तो बिल्कुल दोनों सेपरेट दिए होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, लेट्स रीड ओवर दिस क्वेश्चन। सपोज करो मैं कई बार कुछ एग्जांपल लेता हूँ, 2-3 एग्जांपल लिखता हूँ मैं, उससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज वी आर टेकिंग वन एग्जांपल, e raised to power x and this is sine of x plus cos of x into dx. So we can see here this sine x is fx and this cos x is f dash x. So we clearly see that this question is in this type, and that's why answer of this question will be e raised to power x into sin x plus c. इस क्वेश्चन का आंसर भी e raised to power x into sin x plus c हो जाएगा। लेकिन ये आंसर हम सीधा ऐसे सिर्फ ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे। सब्जेक्टिव में CBSE में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको ex को sin x और cos x के साथ मल्टीप्लाई करके फिर फर्स्ट पार्ट को प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, सेकेंड वाला जो f डैश x वाला पार्ट है उसको एज इट इज छोड़ के चलेंगे। बट लेट्स सी, एक बार हम चेक करते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज 1 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा ऐसे हो सकता है, e रेज़ टू पावर x, सपोज करो वी हैव दिस क्वेश्चन टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx। So this one is fx, this is f dash x. Then answer also e raised to power x into tangent inverse x plus c, e की पावर x into fx plus c। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ e raised to power x fx plus c, ये आंसर आएगा हमेशा। क्वेश्चन नंबर 3, suppose we are having e raised to power x and this is secant square x plus tangent x। तो जरा ध्यान से देखो, सीकेंड स्क्वायर प्लस tan x है, तो सीकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव tan x नहीं होता, tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x होता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि fx पहले लिखा है या f डैश x पहले लिखा है, दैट डजंट मैटर। आप ये चेक करो कि fx क्या है और f डैश x क्या है। तो यहाँ पे जो tan x है दैट्स योर fx, और जो सीकेंड स्क्वायर x है दैट्स योर f डैश x। तो आंसर इज ऑलवेज e रेज़ टू पावर x इनटू fx। सो दैट्स व्हाई आंसर इज व्हाट, e रेज़ टू पावर x इनटू टेंजेंट x प्लस c। ओके, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? अगर हमें पता लग जाता है कि fx और f डैश x क्या है, तब तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। तो एक बार 1-2 क्वेश्चन और इंटीग्रेट करके देखते हैं। सपोज हम एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स वन क्वेश्चन इज देयर, कहता है इंटीग्रेट करिए e रेज़ टू पावर x इंटू साइन इनवर्स x plus under root 1/√1 minus x square into dx, and we know it as sin inverse fx, so this part is f dash x, so fx plus f dash x. It is clear that this question is of this type. So in CBSE how we can integrate? So first part, multiply this e raised to power x with this, both these e raised to power x into sin inverse x into dx plus integration of e raised to power x into √1 minus x square into dx। इसको आप साफ साफ लिखिएगा। तो दिस वन इज e रेज़ टू पावर x इंटू fx एंड दिस इज e रेज़ टू पावर x इंटू f डैश x। तो जो पोर्शन f डैश x में होगा दैट विल रिमेन एज इट इज, उसे आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे, उसे आप एज इट इज लिखते चले जाएंगे। एंड नाउ अप्लाई दिस प्रोडक्ट रूल इन फर्स्ट पार्ट। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज फर्स्ट एंड e रेज़ टू पावर x दैट इज योर सेकंड पार्ट। तो इंटीग्रेट बाय टेकिंग बाय यूजिंग पार्ट्स। So for that we have the formula, first function as it is integration of second sin inverse x as it is integration of e raised to power x minus integration derivative of first, that is dy by dx of sin inverse x into integration of second, this is e raised to power x into dx, bracket बंद, and then integrate to integration of the whole bracket, और प्लस बेटा ये as it is लिखिए। तो दिस इज e raised to power x into 1/√1 minus x square into dx। This part will remain as it is। अब आप ये जहाँ पे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव होते हैं वहाँ पे आप इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव करते चले जाएं। तो दिस इज साइन इनवर्स x इंटू e रेज़ टू पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x होता है, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आप सब जानते हैं, दैट इज 1/√1 minus x square।
integration of e raised to power x, that will be e raised to power x into dx और प्लस e raised to power x into 1 over under root 1 minus x square into dx। और फिर से चेक करो बेटा, तो ये दोनों पार्ट फिर से कैंसिल होंगे, ये हर क्वेश्चन में कैंसिल होंगे। जो भी क्वेश्चन इस टाइप का होगा जब हम उसको सीबीएसई में सोल्व करेंगे तो these two parts are always cancelled in each and every question, and that's why our answer becomes e raised to power x into sin inverse x plus c। That's your final answer। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इस क्वेश्चन को पता करने के लिए आपके पास ये क्लियर होना चाहिए कि विच पार्ट इज एफ एक्स एंड विच इज एफ डैश एक्स। कई बार मुश्किल ही ये आती है इस क्वेश्चन में कि हमें एफ एक्स और एफ डैश एक्स अलग अलग नहीं दिया होता, हमें पता ही नहीं लगता कि एफ एक्स क्या है और एफ डैश एक्स क्या है। तो उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है पहले हम ये क्लियर करेंगे विच इज एफ एक्स एंड विच पार्ट इज एफ डैश एक्स। सपोज वी आर हैविंग वन क्वेश्चन, सपोज वन क्वेश्चन इज देयर, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन सोल्व करिए, दैट मीन्स e रेज़ टू पावर x इंटू x log ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाई x इंटू dx। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आप इसमें पता नहीं लग रहा हमें कि एफ एक्स कहाँ है और एफ डैश एक्स कहाँ है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करके देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा विच पार्ट इज एफ एक्स एंड विच इज एफ डैश एक्स। e रेज़ टू पावर x log x प्लस 1 अपॉन x, तो कहाँ एफ एक्स है कहाँ एफ डैश एक्स है। तो बेटा ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या होगा, खासकर एल्जेब्रिक क्वेश्चंस में जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिकल नहीं होगी, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म नहीं होगी, उनमें आप न्यूमरेटर में डबल टर्म है तो उसको सेपरेट कर दो अलग अलग। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दें e रेज़ टू पावर x इंटू x log x डिवाइड बाई x प्लस 1 अपॉन x इंटू dx। यहाँ से x कैंसिल हो रहा है, तो देन इट इज e रेज़ टू पावर x इंटू log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x इंटू dx। और आप ऑब्जर्व करेंगे कि दिस पार्ट इज एफ एक्स एंड दिस पार्ट इज एफ डैश एक्स। उसके बाद आप इसको कंप्लीट सोल्व कर सकते हैं एंड योर आंसर विल बी e रेज़ टू पावर log x प्लस c। तो आई होप आप इसको कंप्लीट सोल्व कर लेंगे। वही तीसरा क्वेश्चन आ जाता है उसी टाइप का, तो बिल्कुल वैसे ही आप पहले e रेज़ टू पावर x को मल्टीप्लाई करो, e रेज़ टू पावर x इंटू log x इंटू dx, फिर आप e रेज़ टू पावर x को 1 अपॉन x से मल्टीप्लाई करो, तो दिस पार्ट इज f डैश x, तो दैट्स व्हाई दिस पार्ट विल रिमेन एज इट इज। इसको आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे और इसमें आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे बाय टेकिंग log x फर्स्ट फंक्शन एंड e रेज़ टू पावर x एज सेकंड फंक्शन। दिस e रेज़ टू पावर x इज ऑलवेज सेकंड फंक्शन बिकॉज इन आइलेट रूल e इज द लास्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड आइलेट, तो दैट्स व्हाई e रेज़ टू पावर x जब भी क्वेश्चन में आएगा तो दिस ऑलवेज बी द सेकंड फंक्शन। तो ऐसे कुछ और क्वेश्चन हो सकते हैं जहां हमें ये प्रॉब्लम आती है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन है क्या। तो मेनली आपके एनसीईआरटी बुक में दो तरह के क्वेश्चन हैं, एक वो हैं जिनमें एल्जेब्रिक टर्म है, जिनमें एल्जेब्राइक टर्म दे रखी हैं, और दूसरे वो क्वेश्चन हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म दे रखी है। आप इसके लिए क्वेश्चन नंबर जो उसमें क्वेश्चन नंबर 17 और 20 को देखिए बेटा। पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 और 20 इन दो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इन दोनों में e रेज़ टू पावर x के साथ एल्जेब्रिक टर्म दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 17 इज e रेज़ टू पावर x इंटू लिखता है x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17 है, चेक करो। दिस क्वेश्चन इज एल्जेब्रिक एंड 20th क्वेश्चन इज लाइक दिस, e रेज़ टू पावर x इंटू x माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 1 रेज़ टू पावर 3x इंटू dx। इट्स लाइक दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 20। तो इन दोनों क्वेश्चंस में आप चेक करो e रेज़ टू पावर x के साथ एल्जेब्रिक टर्म्स दी हुई हैं, जबकि आप क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है। क्वेश्चन नंबर 18 में ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, तो उसको हम अलग कैटेगरी में रखेंगे। पहले हम एल्जेब्रिक टर्म जहाँ दे रखे हैं वहाँ पे चेक करते हैं। तो दिस वन इज रफ आइडिया, जो मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज रफ आइडिया, लेकिन 99% क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाता है। हम इसमें अगर एक बार हमारा आइडिया कभी फेल भी होता है तो हम कुछ थोड़ा सा चेंज करके उसको अप्लाई करेंगे तो ठीक हो जाएगा। जैसे डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स है बेटा, वहाँ पे डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है,
तो जैसी टर्म डिनोमिनेटर में है बिल्कुल वैसी टर्म न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करो। जैसी टर्म आपको डिनोमिनेटर में दे रखी है बिल्कुल वैसी टर्म आप न्यूमरेटर में बनाओ। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 + x है तो ऊपर भी 1 + x बनाएं। यहाँ पे x - 1 है तो न्यूमरेटर में भी x - 1 ही बनाओ। तो देयरफॉर दिस क्वेश्चन इज e⁻x, दिस इज 1 + x होल स्क्वायर। तो बेटा ऊपर x है, इसको 1 + x कैसे बनाएं? इसमें 1 ऐड कर लूँ और 1 सब्ट्रैक्ट कर लूँ। देखो ध्यान से, जो टर्म डिनोमिनेटर में थी वही न्यूमरेटर में बना ली। अगर इधर आते हो, इधर क्या हो सकता है? इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, डिनोमिनेटर में x - 1⁻³ है, ऊपर x - 3 है, तो क्या मैं इसको x - 1 और -2 लिख सकता हूँ? अब इसमें भी नीचे x - 1 था तो हमने ऊपर भी x - 1 बना लिया। एंड नाउ सेपरेट दिस, अब इन दोनों को न्यूमरेटर में अलग अलग डिवाइड कर दो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। तो अलग अलग डिवाइड करते हैं। वी विल लेफ्ट विद 1/1 + x एंड दिस इज -1/1 + x का होल स्क्वायर इनटू dx। 1/1 + x -1/1 + x का होल स्क्वायर। और उधर अगर जाते हैं तो e⁻x, x - 1/x - 1 का क्यूब बेटा, इसको डिवाइड करो तो 1/x - 1 स्क्वायर बचेगा, पावर 3 है नीचे तो स्क्वायर, और -2 डिवाइड बाई x - 1⁻³ बचता है। अब देखो चेक करके कि क्या ये f(x) और f'(x) है। जब भी फंक्शन में डिनोमिनेटर में कुछ वेरिएबल है जैसे x है या 1/x है, तो जब डेरिवेटिव करते हैं तो उसमें पावर बढ़ती चली जाती है। यहाँ 2 है तो इसका मतलब ये f(x) हो सकता है, ये f'(x) हो सकता है। ऐसे यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ 3 है तो ये f(x) हो सकता है और ये f'(x) हो सकता है। तो फॉर दैट वी कैन चेक इट, हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं, जैसे हमने मान लो f(x) पोल कर लिया, क्योंकि क्या पता अभी हमें कुछ गड़बड़ हो, तो इसलिए हम चेक कर लेते हैं। f(x) = 1/1 + x, देन व्हाट इज f'(x)? जो f(x) 1/1 + x है, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 + x⁻⁻1। देन व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस? -1 × 1 + x⁻⁻2, दैट इज -1/1 + x का होल स्क्वायर। तो यही तो आ रहा है हमारे पास 1/1 + x, दिस इज f(x), तो उसका डेरिवेटिव -1/1 + x का होल स्क्वायर। तो ये जो -1 है बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हो लाइक, अब देखो जरा ध्यान से, तो दिस पार्ट f(x) एंड दिस पार्ट इज f'(x). इट इज वेरी मच क्लियर। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव पार्ट कर रहे हैं तो इसका आंसर आ जाएगा e⁻x × 1/1 + x। अगर आप सब्जेक्टिव CBSE में कर रहे हैं तो आप इसे पता लगा भी ये f(x) है, ये f'(x) है, इसको भी लिख रहने दो। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो सेपरेट करके, जैसे आप करते आए हो अभी तक। e⁻x × 1/1 + x dx प्लस e⁻x × -1/1 + x का होल स्क्वायर इनटू dx। Now this part is having f'(x), so therefore this part will remain as it is. Integrate it by taking 1/1 + x first function and e⁻x as second function। तो उसी तरह आप कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। इधर भी आप 1/x - 1 की पावर 2, मैं बोल रहा हूँ जब डेरिवेटिव होगा तो पावर बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में है x या 1x - 1। तो इसको f(x) लेके चेक कर लो बेटे, 1/x - 1 की पावर 2 है, तो दिस इज x - 1⁻²। तो f'(x) हो जाएगा -2 आगे x - 1⁻³ तो दैट मीन्स -2 डिवाइड बाई x - 1⁻³। तो मेरे ख्याल से यही आ रहा है, देखो 1/x - 1 का स्क्वायर और यहाँ -2/x - 1 की क्यूब। तो माइनस लगाना बेटा, ये प्लस कर लो और ये माइनस हो जाएगा। तो चेक करो, दिस इज अगेन f(x) एंड दिस इज f'(x). तो वी कैन अगेन, अगर हमें ऑब्जेक्टिव पार्ट कर रहे हैं तो हमें आंसर यही पता लग जाता है, दिस इज e⁻x × 1/x - 1 का होल स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। लेकिन अगर CBSE में कर रहे हैं तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप इनको फिर से सेपरेट करेंगे और 1/x - 1 स्क्वायर इनटू dx और प्लस e⁻x -2/x - 1 क्यूब इनटू dx। अब आप ये f'(x) वाला पोर्शन है तो इसको आप एज इट इज छोड़ेंगे और इसे इंटीग्रेट करेंगे बाय टेकिंग 1/x - 1 स्क्वायर एज फर्स्ट एंड dx एज सेकंड। तो वो एक स्टेप के बाद ही कैंसिल हो गया। इट्स लाइक दिस, मीन्स
प्रॉब्लम कहाँ आती है, कई बार हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के ये नहीं पता कर सकते कि एफ एक्स और एफ डैश एक्स क्या है, वो सेपरेट नहीं होते, वो दोनों मिक्स करके दिए हुए हैं। तो हमें उनको सेपरेट करके चेक करना है, एफ एक्स को और एफ डैश एक्स को अलग अलग शो करना है, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं या फिर जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। अगर एल्जेब्रिक स्टेटमेंट है तो उसमें आप ट्राई करोगे कि जैसा पार्ट डिनोमिनेटर में है वैसे ही पार्ट न्यूमरेटर में बना दें। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर आपका 17 और 20 है इस बुक में, और एक एग्जाम्पल नंबर 22 का सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, उसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। अब रह जाता है क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, तो वहाँ पे हम कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले क्वेश्चंस में ज़्यादातर न्यूमरेटर में डबल टर्म होगी, ज़्यादातर न्यूमरेटर में डबल टर्म होगी, तो हम उस डबल टर्म को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, नथिंग एल्स। उससे हमारा एफ एक्स और एफ डैश एक्स आ जाएगा ज़्यादातर क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, मैं करवाता हूँ जरा एक दो क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, स्टेटमेंट इज ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स। यहाँ पे x की बजाय 2x हो सकता है, 1 प्लस साइन 2x 1 प्लस कोस एक्स, कुछ ऐसे हो सकता है। तो क्या करें, यहाँ पे न्यूमरेटर में डबल टर्म है, 1 अलग है और साइन एक्स अलग है, तो आप बेटा न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड करें। ज़्यादातर क्वेश्चंस में आप ऐसा ही करेंगे। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है और एक क्वेश्चन मेरे ख्याल मिसलेनियस में है, तो वहाँ से भी हम कर लेंगे। तो डू इट, सेपरेट करो। अभी हमें समझ ही नहीं आ रहा एफ एक्स कहाँ और एफ डैश एक्स कहाँ है, तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स के लिए आप इन दोनों न्यूमरेटर को सेपरेट करो पहले। तो फॉर दैट वी कैन डू इट, ई रेज टू पावर एक्स 1/1 प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, इट्स लाइक दिस। और बेटा अभी भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें समझ नहीं आ रहा है एकदम से देखने से कि एफ एक्स क्या है और एफ डैश एक्स क्या है। तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स अभी भी क्लियर नहीं है, तो फॉर दैट आप यहाँ पे जो भी आइडेंटिटी यूज़ होती हैं वो यूज़ कर दो। तुम्हें पता है, तुम जानते हो 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है, 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है, साइन एक्स का फॉर्मूला भी है। जनरली एंगल सेम होना चाहिए पूरे क्वेश्चन में, या तो एक्स हो या 2x हो या x/2 हो, जो भी एंगल हो दैट मस्ट बी सेम। तो हम यहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स और साइन एक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। वी नो व्हाट इज 1 माइनस कोस एक्स, दैट इज 2 साइन स्क्वायर x/2, बहुत यूज करते हैं इसको। और अगर प्लस का साइन आ जाता है देन इट इज 2 cos स्क्वायर x/2। और बेटा साइन एक्स है तो दिस इज 2 साइन x/2 इंटू कॉस ऑफ x/2 इंटू dx। तो यूज दिस रिजल्ट, तो 1/1 प्लस कोस एक्स दैट इज 2 cos स्क्वायर x/2 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 और ऊपर साइन एक्स है बेटा, तो 2 साइन x/2 इंटू कॉस ऑफ x/2 इंटू dx। देन इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिखो, तो 1/2 cos स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो सीकेंड स्क्वायर x/2 प्लस ये 2 से 2 कटते बेटा, कोस से कोस कटेगा, दिस इज व्हाट टेंजेंट ऑफ x/2 इंटू dx। और अब आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा कि अगर हम टेंजेंट x/2 का डेरिवेटिव करते हैं, सपोज करो हम fx लिख लेते हैं टेंजेंट ऑफ x/2, टेंजेंट x/2। नाउ व्हाट इज इट्स डेरिवेटिव, तो f डैश x क्या होना चाहिए, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x/2 इंटू x/2 का 1/2 इंटू dx। देखो 1/2 इंटू सीकेंड स्क्वायर x/2, तो दिस वन इज fx, ये हमारा fx है, तो ये हमारा पार्ट f डैश x है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि fx पीछे लिखा है f डैश x पीछे लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको समझ आना चाहिए कि आप इसको क्या लिख रहे हैं। नाउ अब इसका आंसर भी हमें समझ में आ गया, इसका आंसर ई रेज टू पावर एक्स इंटू टेंजेंट x/2 आएगा। बट सीबीएसई में फिर बोल रहा हूँ, आप इसे करके दिखाएंगे। तो लिखिए ई रेज टू पावर एक्स, एफ एक्स को पहले लिख लेता हूँ चलो, इंटू टेंजेंट x/2 इंटू dx प्लस ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1/2 सीकेंड स्क्वायर x/2 इंटू dx। देखो 1/2 का बाहर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एफ डैश एक्स है, तो बस इतना दिमाग में रखिए, इसे आपने इंटीग्रेट नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट पार्ट को करेंगे बाई टेकिंग ई एक्स एज सेकेंड फंक्शन। तो ई एक्स के साथ जो भी होगा वो आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम मेरे ख्याल से इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। प्रॉब्लम यही आती है कि हमें
एफ एक्स और एफ डैश एक्स का ठीक से पता नहीं लगता कि एफ एक्स कहाँ है, एफ डैश एक्स कहाँ है। तो जैसे मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 22 है, इसमें इसी की एग्जाम्पल्स में 22 का फर्स्ट पार्ट में तो क्लियर दे रखा है tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 + x²। लेकिन जो सेकंड पार्ट है बेटे उसमें भी पता नहीं लग रहा एफ एक्स और एफ डैश एक्स, तो उसको और चेक करते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे हम, 7, 8, 10 क्वेश्चन कर लो बस, उससे हमारा काम हो जाएगा, तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्या करना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है इसके, तो आप कुछ क्वेश्चन एलिमेंट से, आर.डी. शर्मा से, इनसे भी कर सकते हैं ना। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 22 का सेकंड पार्ट है, 22 का सेकंड पार्ट, एग्जाम्पल 22 सेकंड पार्ट। दिस क्वेश्चन इज e⁻x इंटू x² + 1 / x + 1 का होल स्क्वायर। देखो हम कई बार जैसा सोचते हैं गलत भी हो जाते हैं, कई बार हम गलत भी हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर एल्जेब्रिक टर्म है तो जैसे डिनोमिनेटर का पार्ट है वैसा ही न्यूमरेटर में बनाओ। तो डिनोमिनेटर में x + 1 है बेटा, तो इसका मतलब न्यूमरेटर में मैं x + 1 बनाना चाहता हूँ, और x + 1 बनाने के लिए मेरे पास कई बार एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। तो मे बी कि कोई जो मैंने पहला ऑप्शन यूज़ किया वो गलत हो जाए, हो सकता है, मे बी पॉसिबल। मैंने कहा है दिस इज नॉट 100% प्रूफ मेथड, यू कैन गो विद ट्रायल मेथड। तो एक का अगर गलत होता है तो फिर दूसरा ऑप्शन ट्राई करो, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस में फर्स्ट ऑप्शन से ही हमारा काम हो जाएगा। अब मुझे x + 1 बनाना है ऊपर, तो व्हाट वी कैन डू, पहला मेरे दिमाग में आ रहा है कि चलो मैं ऐसे करता हूँ, मैं एक करके दिखाता हूँ जिसमें ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। x + 1 बनाना है बेटा, x² + 1 है तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, x² + 1 + 2x और -2x। अब ये इससे क्या होगा, देखो मैंने 2x ऐड कर दिया, 2x सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ व्हाट अबाउट दिस, a² + b² + 2ab, तो दैट्स व्हाई दिस इज e⁻x x + 1 होल स्क्वायर -2x डिवाइड बाई x + 1 होल स्क्वायर। तो आप कह सकते हो जैसी टर्म हमारी डिनोमिनेटर में थी हमने वैसी न्यूमरेटर में बना ली, बट व्हाट हैपन, दिस जब डिवाइड करेंगे तो 1 - 2x डिवाइड बाई x + 1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ जाके गड़बड़ होगी बेटा, ये गलत है। क्यों, अगर मैं 1 को f(x) कहता हूँ तो ये उसका f डैश x नहीं है, बिल्कुल भी 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है। और अगर मैं इसको f(x) कहूँ तो f(x) का इस पार्ट का डेरिवेटिव 1 नहीं आता। इट मीन्स दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ e⁻x इंटू f(x) + f डैश x। ये हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं आता, नहीं है। तो इट मीन्स हमारी जो चॉइस थी, जो हमने सिलेक्ट करके चले, वो गलत है, वो ऐसे नहीं हो सकता है क्वेश्चन। तो वी गो विद सम अल्टरनेट मेथड, कुछ अल्टरनेट सोच के देखते हैं क्या होता है। एक ऑप्शन गलत होता है तो वी कैन ट्राई फॉर अनदर वन। अनदर वन क्या हो सकता है बेटा, e⁻x, दिस इज x + 1²। तो ऊपर x² है बेटे, तो मैं क्या x² + 1 है, क्या मैं इसको ऐसे कर लूँ x² - 1 और +2। देखो जरा मिला के तो -1 और +2 तो +1 ही हो जाएगा। लेकिन ऐसे करने से x² - 1 है, उसको फैक्टर करेंगे तो x - 1 × x + 1 कुछ ऐसे हो जाएगा। सेपरेट करिए तो x² - 1 डिवाइड बाई x + 1 का होल स्क्वायर और +2/x + 1 का होल स्क्वायर। अब की बार भी कुछ ऐसे बात बन सकती है, तो क्या लिख सकते हैं, दिस इज x² - 1, तो दैट इज x + 1 इंटू x - 1 डिवाइड बाई x + 1 का होल स्क्वायर और +2 डिवाइड बाई x + 1 होल स्क्वायर इंटू dx। तो बेटा ये x + 1 का होल स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा x + 1 से, तो वी लेफ्ट विद e⁻x x - 1 डिवाइड बाई x + 1 +2/x + 1। मैं फिर याद कराता हूँ, f(x) में अगर फ्रैक्शनल फंक्शन है, कोई भी रेशनल फंक्शन है, तो f(x) और f डैश x को कंपेयर करोगे तो f डैश x में पावर ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये डेरिवेटिव हो सकता है और ये f(x) हो सकता है, मे भी हम गलत हो, जैसे पिछली बार गलत होगी। तो चेक करके देख लो कि क्या हम सही है। तो सपोज करो f(x) को लिया मैंने x + 1/x - 1, यही f(x) हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है। जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो डेरिवेटिव होगा। तो डेरिवेटिव करके देखिए बेटा, क्वॉशिएंट रूल लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे, क्वॉशिएंट रूल। तो x - 1 होल स्क्वायर
तो x माइनस वन एज इट इज x प्लस वन का डेरिवेटिव 1 माइनस x प्लस वन एज इट इज इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। तो x माइनस वन माइनस एक्स और माइनस वन डिवाइड बाई, मैंने उल्टा लिख दिया, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। सॉरी, ये x माइनस वन ऊपर है और x प्लस वन नीचे है, तो x प्लस वन का स्क्वायर नीचे होगा, तो x प्लस वन एज सच इंटू दिस माइनस x माइनस वन इंटू दिस। तो बेटा x प्लस वन का स्क्वायर और दिस वन इज x प्लस वन माइनस एक्स और प्लस वन, तो x से x कैंसिल हुआ। तो देखो जरा 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया, ये तुम्हारा f डैश x है। इट इज क्लियर ना? तो ये एफ एक्स है, ये हमारा एफ डैश एक्स है। तो अगर ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो फिर से आंसर क्लियर, ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अगर आप सब्जेक्टिव कर रहे हैं तो सेपरेट करो एंड इंटीग्रेट करो। एक क्वेश्चन और बताना चाहते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज में एग्जाम्पल है जी बेटा, मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल नंबर 40। मिसलेनियस एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 40 है, एग्जाम्पल 40 मिसलेनियस एक्सरसाइज में। ये कहता है इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस वन अपॉन लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको सोल्व करिए। मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 40, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स है, इसको इंटीग्रेट करना है बेटा। अब ये हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये टाइप कौन सी है, किस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अब ये ई की पावर एक्स भी कहीं नज़र नहीं आ रहा, बट मैं इसको एक्सरसाइज के साथ ही करा रहा हूँ, तो इसमें टाइप तो यही होगी, तभी हमने इस क्वेश्चन को लिया साथ में। तो इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा दिमाग लगा के लॉग ऑफ एक्स को टी पुट कर दो, लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू टी। ये देखो यहाँ भी लॉग एक्स है, यहाँ भी लॉग एक्स है, टी। तो बेटा टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में एक्सपोनेंशियल ले लो। तो ई रेज टू पावर लॉग ऑफ एक्स, वैसे ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, वैसे आपको ही पता होता है ई और लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो x इक्वल टू ई रेज टू पावर टी। तो ये इतना पॉइंट है, ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको खुद ही पता होना चाहिए। लॉग ऑफ x इक्वल टू टी है, तो इसका मतलब x की वैल्यू ई रेज टू पावर टी आ जाएगी, जहाँ x होगा उसको ही। एंड देन डिफरेंशिएशन डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर टी इंटू डी। इसको ध्यान से देखना, log x को मैंने टी पुट किया, फिर मैंने जहाँ पे भी log x है जैसे वहाँ तो हम t रख देंगे, log ऑफ t प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर। लेकिन समस्या रह जाती है dx की, dx की वैल्यू कैसे निकालें? तो dx के लिए हमने पहले x की वैल्यू निकाली, तो x इक्वल टू ई रेज टू पावर टी, डिफ्रेंशिएट कर देंगे ई रेज टू पावर टी इंटू डी। तो दिस इज ई रेज टू पावर टी इंटू डी। वो कोई फर्क नहीं है, बाद में लिखा है, पहले लिखना, हम पहले लिख देंगे। तो दिस इज ऑफ द टाइप ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। लेकिन गड़बड़ क्या होगी, आप देखो गड़बड़ क्या हो गई है, ई रेज टू पावर टी ठीक है, लॉग ऑफ टी आ रहा है, तो लॉग ऑफ टी का डेरिवेटिव तो वन अपॉन टी होता है, लेकिन इसमें तो वन अपॉन टी स्क्वायर है। जरा ध्यान से देखिए आप, इसमें प्रॉब्लम बस यही है। इस क्वेश्चन को मैं इसी करके करा रहा हूँ, इस पॉइंट के कारण ही। ई की पावर एक्स ठीक है, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होना चाहिए था ना, दैट इज वन अपॉन एक्स, यानी कि लॉग टी है तो उसका डेरिवेटिव वन अपॉन टी होना चाहिए था। यहाँ पे वन अपॉन टी स्क्वायर है, तो व्हाट टू डू, क्या करें हम? वन अपॉन टी स्क्वायर है, मेरा क्वेश्चन समझिए बेटा, लॉग टी है तो उसका डेरिवेटिव मुझे वन अपॉन टी की जरूरत है। यहाँ पे वन अपॉन टी नहीं है, वन अपॉन टी स्क्वायर है, तो इसका मतलब मुझे कुछ और चेंज करना पड़ेगा इसमें। तो क्या कर सकते हैं, बाहर ठीक है, हम इसमें अपनी तरफ से वन अपॉन टी ऐड कर लेते हैं, बिकॉज वी नीड इट। और जब कोई चीज़ आप अपनी तरफ से ऐड करते हो तो उसको बैलेंस करने के लिए उसे सब्ट्रैक्ट भी करो। देखो लॉग ऑफ टी और प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर दे आर एज इट इज, उनमें हमने कोई चेंज नहीं किया। हमने इसमें एक वन बाई टी ऐड किया और एक वन बाई टी सब्ट्रैक्ट किया। इसको ज़रा अलग अलग सेपरेट कर लो। ई रेज टू पावर टी, दिस इज लॉग ऑफ टी प्लस वन अपॉन टी। तो आपको देखेंगे कि लॉग टी का डेरिवेटिव वन बाई टी, इस बाकी के दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो वन बाई टी, दिस इज माइनस वन बाई टी स्क्वायर। तो यहाँ भी आप चेक करोगे
कि 1/t का डेरिवेटिव -1/t² होता है। तो इट मीन्स ये एक सिंगल क्वेश्चन था, ये 2 क्वेश्चंस में कन्वर्ट हुआ, बाकी और सारा कुछ सेम है। e⁻t तो पहले पार्ट को और दूसरे पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं, +1/t × dt माइनस e⁻t, इनके साथ भी इंटीग्रेशन कर दो जी, 1/t प्लस -1/t² × dt। चेक करो बेटा, e की पावर t ft प्लस f', यहाँ पर भी e⁻t तो ft 1/t है, तो उसका डेरिवेटिव -1/t² हो जाएगा। नाउ सेपरेट कर करके इनको दोनों को फिर आप इंटीग्रेशन करते हैं। नाउ डू इट योरसेल्फ, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल खत्म हुआ और अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटे डेफिनेट इंटीग्रल है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे। ओके, गुड डे।